Dear student of standard second, welcome you to Jai Somnath English Medium School. Today I am going to teach you English grammar. First it was told to you that grammar will be included with the English text, but now we have taken it separately. So today is our first lecture and you all are very much familiar with me. Yes, myself is Mrs. Mittal Christie. Let us start doing our chapter 1. What is the heading of the chapter? Letters and sentences. Okay? Okay children, what are letters? Letters क्या होता है? Yes, from the nursery you are learning. Okay, आप nursery से पढ़ रहे हो. That is, letters are alphabets. Letters क्या है? Alphabets है. Okay. What is the function of the letters? Letters का function क्या है? कोई भी language में letters का बहुत importance होता है ना? In English भी वैसा ही है. In English letters are also very important. Now alphabets हम एक बार देख लें. Let us see. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, letters means letters एक word कब बनता है? तो letters together meet. Letters क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलते हैं. Okay, they are joined. मिलते हैं and form a meaningful word. और क्या बनाते हैं? Meaningful word बनाते हैं. Okay? Okay children, can you see some drawings on the board? Some pictures are made on the board. Can you recognize this? What is this? Yes, what is this? Cat. It is a cat. So what is written over here? A, T, C. Is it right spelling of cat? क्या cat का ये right spelling है? No, it is not right spelling. All alphabets are there. सारे alphabets है. cat के spelling में C आता है, T भी आता है, A भी आता है ना? Then why it is not right? Because the letters are not in proper order. Letters साथ में तो है, but they are not in proper order. So ये यहाँ पे जो spelling है, it is not right for cat. Cat का spelling क्या आएगा? C को यूज पहले फर्स्ट क्या आएगा? C. So we need to write C here. Then C के बाद yes A, then T. Okay, C A T, cat. This is not right. Okay, we have written here jumbling. हमने jumbling में लिखा है, तो ये wrong है. Okay. What is the second picture? Yes, it is the moon. Yes, the moon is here. Okay, is this right spelling? Okay, let us see. Moon के spelling में पहले क्या आता है? M. M. Okay, M is here. Then O. Yes. Again O. Double O. Double O's are there in the spelling of moon. And N. So here it is not proper. ये क्या हो गया है? उल्टा पुल्टा हो गया है. So let us make it in proper order. M, then O, then again O, then N. Means moon. M, O, O, N. Moon. When these four letters are written together, they make the spelling of moon. Okay. What is the third picture? Yes. You are playing with this now. What is it? It is a bat. Yes. It is a bat. Bat है ना? आप जिससे खेलते हो ना क्रिकेट. Yes. Okay.
सो बैट, यहाँ पे क्या है बैट का स्पेलिंग TAB, इज इट राइट? क्या ये राइट है? नो, T आता है बैट के स्पेलिंग में, A ऑल्सो देयर इन स्पेलिंग ऑफ बैट एंड B ऑल्सो दैट, पर तो भी ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं है क्योंकि उसका ऑर्डर करेक्ट नहीं है. सो चिल्ड्रन, नाउ यू हैव कम टू नो के ऑर्डर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन वर्ड. आपके स्पेलिंग्स कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं ना, है ना, कभी I और E रिप्लेस हो जाते हैं ना, मिसप्लेस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ के आपको स्पेलिंग आप थोड़ा इधर उधर कर देते हो, तो ये इट हैपेंस, है ना. तो लेट अस राइट द प्रॉपर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बैट. B then A then T, तो BAT. Now it is right and it is bat. What is that? Yes. Can you see? Yes. What is it? पिक्चर तो हमको पता है कि ये कैप है. Now let us go to the spelling. APNC. APC. इसका कोई मीनिंग है? ऐसा कोई स्पेलिंग है? नो. सो यहाँ पे कैप के स्पेलिंग में A आता है, P भी आता है और C भी आता है. Then also this is not right because it is not in proper order. तो हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे. हाँ बोलो, you know, do you know what is the spelling of cap? Yes, C A and P. All three letters will come in the spelling of cap. But here, though all three letters are written, but spelling is not right, है ना. Let us see the next. What is this? This is a bag. Yes, ये बैग है. Let us see A, G and B. बैग के स्पेलिंग में A आता है. Yes, G is also there and B is also there. But again, the order is not proper for the spelling of bag. बैग का स्पेलिंग क्या आएगा? B भी आया, A भी आया and G, all three are there, but this is not proper because the order is not proper for the spelling of a bag. Okay children, this way I will give you in the PDF more exercise to do, that you have to do in your CW. Okay, now after seeing the letters, let us do the second part of our chapter, sentences. Sentences क्या होता है बच्चों से? What is a sentence? Sentence क्या होता है? आपको पता है sentence क्या होता है? हाँ, you are writing sentences. Yes. Okay, तो sentences क्या है? A group of words which make complete sense. Okay, words का group है. हमने पहले क्या किया? Letters का group, है ना. Letters को जब when letters meet together, एक साथ मिलते हैं तो, और वो भी proper order में, then they are making a meaningful word. तब एक meaningful word बनता है. उसी तरह से similar to that, when the words are together in a proper order, जब words साथ में होते हैं proper order में, तो एक meaningful sentence बनता है. Okay, let us see the definition of the sentence. A group of words. किसका group है? Words का. That makes complete sense. जिसका complete sense होता है is called a sentence. उसको sentence बोलते हैं. Okay children, दूसरी एक बात, sentences are of many kind. जिस तरह का सेंटेंस होता है उस तरह से उसके साथ पंक्चुएशन मार्क्स लगते हैं. इफ अ सेंटेंस इज स्टेटमेंट काइंड, तो उसमें फुल स्टॉप आता है. इफ अवर सेंटेंस इज ऑफ क्वेश्चन टाइप, देन क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, क्वेश्चन मार्क आता है. और अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है, ओके, या ऑर्डर है, देन व्हाट विल बी देयर?
तो क्या आएगा वहाँ पे? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो ये सब मैं आपके समझने के लिए बता रही हूँ। नोन इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। इट इज जनरली आई एम इंस्ट्रक्टिंग। ओके, नाउ let us see on the board. Cat she likes. 1, 2 and 3. 3 words are there. एक साथ लिखे हुए हैं, है ना? 3 words are written on the board, but it doesn't have any meaning. उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि cat she likes. What it means? Nothing. उसका कोई मतलब नहीं है. Let us see this next one. Roses garden red are there. Roses garden red are there. यहाँ पे words तो है. We are having words here. Many words are there, but it is not a sentence. हमने ऐसा बोला है कि sentence is a group of words. पर साथ में क्या है? Which make complete sense. ओके, अब वन थिंग आई वॉन्ट टू शो यू. जब कोई भी सेंटेंस होता है उसमें ऑर्डर बहुत ज़रूरी है. ओके चिल्ड्रन, ऑर्डर इज वेरी मस्ट. तो ये ऑर्डर कैसे आप करोगे? ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे वर्ड्स को? तो इंग्लिश में एक रूल है चिल्ड्रन. ओके, इन इंग्लिश देयर इज अ रूल. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ दिस रूल. अगर इंग्लिश में आपको ये रूल आएगा देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. ओके, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद आता है वर्ब. ओके, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जब ये तीन ऑर्डर में होते हैं हमेशा सेंटेंस में. जब ये 3 ऑर्डर में आते हैं देन आवर सेंटेंस इज परफेक्ट. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कैट शी लाइक्स. इसमें सब्जेक्ट क्या है? लेट अस फाइंड द सब्जेक्ट फर्स्ट. पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे. ओके, तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ओके, सब्जेक्ट मतलब क्या? व्हाट इज अ सब्जेक्ट? पहले ये इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, है ना, कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बोला गया हो. ओके, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम. ओके, जो हमारा टॉपिक है. तो कौन है हमारा टॉपिक? तो शी. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? दिस इज अवर सब्जेक्ट. ओके, वर्ब मीन्स एक्शन बताता है. जो क्या बताता है? एक्शन या ऑकरेंस बताता है. और कभी और या तो स्टेट ऑफ बीइंग, होना, कुछ होना. दैट विच शोज. ये है लाइक्स. ये हमारा वर्ब है. और लास्ट में है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट ऐसा पर्सन या ऐसी थिंग है जिसके ऊपर ये वर्ब है वो रिफ्लेक्ट करता है ना. तो लेट अस सी. और ये हमारा है ऑब्जेक्ट. नाउ पुट दिस. ये जो वर्ड्स है चलो हम उसको ये ऑर्डर में लिखते हैं. लेट अस डू. सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? शी. सेकेंड वर्ब क्या है? प्लस वर्ब क्या है? लाइक्स. एंड थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? कैट. लेट अस रिमूव दिस sign. What will be the sentence? She likes cat, sorry. She likes cats. Full stop. And one very important thing, the proper sentence always begin with a capital letter. जो प्रॉपर सेंटेंस होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. आइदर इट इज अ क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस और इट इज अ
स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, कोई भी तरह का सेंटेंस हो, हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वो या तो स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर वो इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. Children, today we are going to learn 5 orders, basic orders of making sentence. Okay, making sentences. 5 orders हम सीखेंगे आज, जिससे आपको सेंटेंस फॉर्म करना आ जाएगा, and it is very very easy. Okay, let us see. First is subject plus verb. Subject plus verb. Let us see. I am writing here. Meera reads. Full stop. To make or to form a sentence, at least 2 words are must. 2 words तो कम से कम चाहिए ही हमको सेंटेंस बनाने के लिए. 1 word can't make a sentence. एक वर्ड से कभी भी सेंटेंस बनता नहीं है. एटलीस्ट वी नीड 2 words. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? What I have written? मीरा reads. मीरा is the subject and reads is the verb. Read verb means action या तो state of being या तो occurrence. ओके, कुछ होना, ये auxiliary verbs. That I will teach you later. Second thing, subject, second order, basic order of the sentence. Second one, subject plus verb plus object. Okay, she eats an ice cream. She, our subject is she, verb means action, eats an object an ice cream. जब आपको कोई भी जंबल वर्ड्स दिए हो और आपको बोला गया हो कि राइट इन द प्रॉपर मैनर एंड राइट अरेंज देम इन अ प्रॉपर मैनर एंड मेक सेंटेंस. ओके, तब आपको ये याद रखना है, आप क्या करोगे? अगर सब्जेक्ट और वर्ब 2 दिया है तो आप पहले सब्जेक्ट ढूंढोगे, देन यू हैव टू फाइंड द वर्ब. ओके, अगर 2 है तो सब्जेक्ट ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट द सेकेंड वर्ड. जो सेकेंड वर्ड क्या है वो आपको पता चल जाएगा. सेकेंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको कोई वर्ड कोई सेंटेंस जम्बलिंग वर्ड्स ऐसे दिए हो, ऐसा ग्रुप दिया हो जिसमें सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो आप कैसे ऑर्डर करोगे? पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन और थिंग. ओके, दैट इज डूइंग समथिंग, जो कुछ कर रहा है. ओके, हमारे सेंटेंस में यहाँ पे क्या है? शी ईट्स एन आइसक्रीम. क्या कर रहा है हमारा सब्जेक्ट? ईट्स. ईट्स मतलब कि क्या कर रहा है? खाने का काम. व्हाट, क्या खा रहा है? एन आइसक्रीम. समझ आया? दिस इज अवर सेकेंड बेसिक ऑर्डर ऑफ सेंटेंस फॉर्मिंग. थर्ड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव. ओके, तो सब्जेक्ट okay. Okay, what I have written? He, subject, he, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, ओके, वर्ब प्लस वर्ब इज एंड एडजेक्टिव टॉल. अब आप यू आर वेरी स्मॉल. ओके, आपको पता नहीं चलेगा कि एडजेक्टिव क्या है. तो एडजेक्टिव वो होता है जो हमारा सब्जेक्ट है, उसको उसके बारे में कुछ हमको ज़्यादा बताता है. ओके, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? ही और टॉल. इससे इसका कोई रिलेशन होता नहीं है. ओके, दिस इज मस्ट, ये ज़रूरी है सेंटेंस फॉर्मिंग के लिए. बट ये जो एडजेक्टिव है वो हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. ओके,
तो हमने क्या क्या सीखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेशन में हमने वो सीखा। इन सेकंड फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन थर्ड फॉर्मेशन सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। नाउ फोर्थ वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। ओके, लेट अस सी। What is our subject? राम. Who is our subject? राम. ओके, हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम. वर्ब, हाँ, एक्शन रैन, क्या कर रहा है? हाँ, क्या किया है? पास्ट टेंस है, रैन. एंड एडवर्ब स्लोली. अब यहाँ पे ये जो रैन है हमारा वर्ब, अब ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको फर्क कैसे पता चलेगा? जैसे एडजेक्टिव में मैंने बताया आपको कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। उसी तरह से एडवर्ब में देखो, यहाँ पे वर्ब में कुछ ऐड करता है। हमारा वर्ब है रैन और वर्ब में ऐड क्या किया? कैसे दौड़ा? स्लोली. ओके, तो हमारा फोर्थ टाइप का सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब. ओके, तो हमेशा एडवर्ब वर्ब से रिलेटेड होता है. ओके, फिफ्थ वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन. ओके, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, लेट अस सी. और सब्जेक्ट इज नेहा प्लस हमारा वर्ब है ड्रिंक्स एंड नाउन है चूज. ओके, तो नेहा ड्रिंक्स चूज. तो यहाँ पे जो नाउन है हमारा, ये जो नाउन है ये दिस इज द अदर थिंग. ये दूसरी कोई चीज़ है या तो दूसरा कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, अदरवाइज एनिमल हो सकता है, कोई भी थिंग या तो एनिमल, पर्सन, एनीथिंग विल बी देयर. ओके, तो नेहा ड्रिंक्स जूस. तो सब्जेक्ट है नेहा, वर्ब इज ड्रिंक्स एंड नाउन है चूज. ओके, तो आई टॉट यू 5 टाइप्स ऑफ बेसिक ऑर्डर्स टू मेक सेंटेंसेस. ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि वाइल यू आर हैविंग द जंबल वर्ड्स एंड यू हैव टू फॉर्म अ सेंटेंस, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है. ओके, जब ये ऑर्डर आप याद रखोगे, इट इज़ वेरी इजी. वंस यू डू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, लेट अस सी सम एक्सरसाइज, सम examples. Let us see some examples of sentences. Number 1, my is name Parth. Again, my is name Parth. We are having a group of words. हमारे पास ग्रुप है वर्ड्स का. ओके, पर ये कुछ इट इज नॉट लाइक सीम्स प्रॉपर. हमको कुछ प्रॉपर नहीं लग रहा है ना. So let us arrange these words in a proper manner to get proper sentence. My is name Parth. Now find the subject. किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं? ओके, किसके बारे में बोला गया है? ओके, तो नेम के बारे में. नेम के साथ माई नेम. ओके, तो माई नेम, this is our subject. Now find the verb. These two we have written, is और Parth. इसमें verb क्या है children? is means state of being. Okay, my name is and last Parth, ये noun है. Okay, हमारा जो सेंटेंस बना, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप. अगर ये नहीं होगा, योर सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. ये तुम्हारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. ओके, माई नेम, दिस इज आवर सब्जेक्ट, इज पार्थ. ओके, माई नेम इज पार्थ.
subject plus verb plus noun. Children, whenever the sentence begin, that I told you before, that whenever the sentence is begin, it begins with capital letter, and अगर आपने यहाँ पे small letter किया, then also your answer will be wrong. Though it is in proper order, but if you don't put capital letter when you start the sentence, then our sentence will be wrong. Let us see the second one. She is teacher my. She is teacher my. What is the subject? She is teacher my. What is the subject? किसके बारे में बात करें? She. This is our subject. Okay. She. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमारा verb is. She is and teacher. ये यहाँ पे टीचर माई टीचर हमारा नाउन है. माई टीचर, ये इसका ये पोजीशन बताता है कि किसके टीचर है. माई टीचर. ओके, तो ये हमारा पूरा ये नाउन है. तो शी इज माई टीचर. ओके, फुल स्टॉप. ओके, बनाना अ फ्रूट इज. लेट अस फाइंड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को फाइंड करो. व्हाट इज द सब्जेक्ट? बनाना. किसके बारे में बात हो रही है? बनाना के बारे में. अ फ्रूट इज. अब हमको क्या ढूंढना है? हमको सब्जेक्ट तो मिल गया. सेकेंड स्टेप इज आवर वर्ब इज, एंड बनाना इज अ फ्रूट. आर्टिकल गोज विद द नाउन. ओके, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ जाता है. बॉय आई एम ए. बॉय आई एम ए. ओके, लेट अस फाइंड द सब्जेक्ट. किसके बारे में बात हुई है? आई, मेरे बारे में. अब मतलब के बॉय के बारे में. आई, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो कौन सा है? एम. हमेशा आई के साथ एम वर्ब आता है. आई एम, आर्टिकल ए, बॉय. ये भी नाउन है. ए बॉय. ओके, एंड फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप. तो दिस वे you have to write the sentences in proper manner. Whatever exercises are there, I have given it in the PDF. You have to do all the exercises for the exam and learning in your CW. For the CW, make 200 pages, a single 4-line notebook, and cover it, label it, write down whatever is there allotted in your PDF, and write in good handwriting. Okay children, thank you.